A very good morning to all my dear students. I welcome you once again in the class of accounts. We will continue with our chapter number 7, cash book and its types. Question number 9. Before I move on to studies, let me put one thought in front of you. Every teacher once was a student. Every winner once was a loser. Every expert once was a beginner, but all of them have crossed the bridge called learning. So you people are also on the same bridge of learning. So learn very well through your videos. Question number 9 शुरुआत करें उसके पहले कुछ theory है. I want to explain you that. Bank book. Now, what is it? When the trader keeps more than one account in a bank or keeps account in more than one bank, bank book is maintained to record the bank transactions easily. What it is said over here, जब कोई भी ट्रेडर एक अकाउंट मेंटेन करता है, keeps more than one account in a bank, एक ही बैंक में एक से ज्यादा अकाउंट हो या अलग अलग बैंक में अलग अलग अकाउंट हो, तो अपने अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए, अपने ट्रांजैक्शंस को इजी बनाने के लिए वो बैंक बुक को मेंटेन करता है. फॉर एग्जांपल, आई हैव शोन यू ओवर हियर, अ ट्रेडर माइट कीप अ सेविंग्स एंड अ करंट अकाउंट इन बैंक ऑफ बड़ौदा, और ही माइट कीप वन अकाउंट इन बैंक ऑफ बड़ौदा, सेकंड इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड थर्ड इन बैंक ऑफ इंडिया. ओके, एक ही बैंक ऑफ बड़ौदा में सेविंग्स भी रखे, करंट अकाउंट भी रखे तो भी वैलिड है. एंड वही सेम ट्रेडर बीओबी में, एसबीआई में और बीओआई में अपने अकाउंट्स को ओपन करवा सकता है. तो वो कैसे मेंटेन करेगा इतने सारे ट्रांजैक्शंस अलग अलग बैंक में? फॉर दैट रीजन, फॉर दैट पर्पस, सेपरेट बैंक बुक इज टू बी prepared. The form and the structure of bank book is exactly like the cash book. Okay, students. Now, let us go through with the practical question based on bank book. Okay, now starting with question number 9, that is, from the following transactions prepare bank book in the books of कल्पना. कल्पना की बुक्स में हमें बैंक बुक बनाना है as similar as cash book. The format remains the same. 2015. Kalpana keeps two accounts in two different banks, so that's why it is bank book. Opening bank balance with SBI is 5,000. Opening bank OD with Bank of Baroda is 4,000. Now first check the format how we are supposed to draw. Question number 9, 187 page number, 2 columnar bank book of Kalpana for September 2015. Date, receipt number, ledger folio remains same. यहाँ पे अपन कैश बैंक डिस्काउंट ऐसा सब कुछ लिखते थे. Now कल्पना is having two different accounts in two different banks, so SBI and BOB हमने लिखा है. Date, payment, voucher number, ledger folio and SBI and BOB. Okay, so like this way it is two columnar bank book. I have taught you earlier as well, जब कभी भी आपका बैंक बैलेंस होता है तो it comes on the receipt side. Okay, so we'll write the date 2015 September 1st. SBI का बैंक बैलेंस था तो हम क्या लिखेंगे? To balance brought forward. SBI के कॉलम में 5,000. ओके, एंड बैंक ओडी था बीओबी के लिए. सो अगेन डेट 2015 September 1st. ओके, यहां पर आपका आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड. बीओबी के कॉलम में हाउ मच? 4,000. ओके, नाउ coming on to the question, that is transaction dated 2. Goods of 8,000 purchased
for which a check of 3000 on SBI and for remaining amount a check of BOB is issued. आपने 8000 के गुड्स लिए हैं, 8000 के गुड्स के सामने आपने दो चेक्स इशू किए हैं, SBI का और BOB का. SBI का इज ऑफ 3000 एंड रिमेनिंग इज ऑफ BOB. तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा 5000. तो 5000 का चेक आप किस में से दे रहे हैं, BOB में से दे रहे हैं, और आपने क्या किया है, गुड्स को परचेज किया है. सो इट विल कम अप ऑन पेमेंट साइड. डेट टू क्या लिखेंगे, बाय परचेज अकाउंट. SBI में से आपने चेक बनाया है दैट इज ऑफ 3000 एंड रिमेनिंग आपका BOB में से है. टोटल परचेजिंग 8000 माइनस 3000 का SBI, तो रिमेनिंग कितना आया 5000 फ्रॉम BOB. इज दिस क्लियर? नाउ मूविंग फर्दर, डेट 4. Goods of 7000 sold to Jenny. Jenny issued a check of necessary amount which we deposited in BOB account. 7000 के गुड्स आपने जेनी को बेचे हैं और जेनी ने हमें चेक दिया है, और वो चेक हमने कहां डाल दिया है, BOB अकाउंट में हमने डाला है. सो डेट विल बी 4 टू सेल्स अकाउंट. BOB में गया है, इसके लिए पूरा का पूरा 7000 इन द कॉलम ऑफ BOB. इज दिस क्लियर डियर स्टूडेंट्स? नाउ मूविंग फर्दर, ऑन डेट 6 सैलरी ऑफ 3000 पेड बाय चेक ऑफ BOB. आप सैलरी पे कर रहे हैं, चेक इशू किया है BOB में से, पेमेंट कर रहे हैं. इट विल कम अप ऑन दी क्रेडिट साइड. डेट 6 क्या लिखेंगे, बाय सैलरी अकाउंट. BOB में से आप दे रहे हैं 3000, सो इन द कॉलम ऑफ BOB 3000. Okay dear students, moving further on to the transaction number 8. SBI credited 700 for interest and 2000 for dividend. बैंक ने क्रेडिट किया है, मींस बैंक ने हमारे बैंक बैलेंस में इंक्रीमेंट किया है. हम रिसीव कर रहे हैं, हमें 700 रुपए इंटरेस्ट का और 2000 रुपए डिविडेंड का मिला है, हमें मिला है. वी विल रिकॉर्ड इट ऑन दी रिसिप्ट साइड. क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट अकाउंट. ओके, एक और आएगा टू डिविडेंड अकाउंट. दोनों ही SBI के थ्रू मिल रहे हैं. इंटरेस्ट क्रेडिटेड इज 700 and dividend received is of 2000. Okay dear students, moving further on date 10, rupees 1500 withdrawn from SBI for personal use. Personal use means drawings. हमेशा आपको ये पहले से याद है, SBI में से आप 1500 withdraw कर रहे हैं. That is on payment side by ड्रॉइंग्स अकाउंट. SBI में से 1500. ओके, नाउ मूविंग फर्दर, 12th डेट, crossed check of 15,000 received from Jinal towards her due which is deposited in BOB account. क्रॉस चेक हमने क्या किया है, रिसीव किया है एंड BOB अकाउंट में हमने डिपॉजिट कर दिया है. हमको पैसा मिल रहा है. डेट 12 टू जीनल अकाउंट. BOB में हमने डाला है 15,000 रुपीज. ओके, नाउ मूविंग फर्दर, गुड्स ऑफ 4000 check of 2000 issued from SBI bank account and is deposited in the account of BOB. Now this is as good as your contra entry. आप क्या कर रहे हैं, SBI में से चेक इशू कर रहे हैं और डिपॉजिट कहां कर रहे हैं, BOB में. यानी SBI आपकी गिवर बन जाती है और BOB आपकी रिसीवर बन जाती है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, हु इज द गिवर? इशूड फ्रॉम SBI. दिस इंडिकेट्स कि हमने जो चेक बनाया है वो SBI अकाउंट में से क्रिएट किया है. सो SBI इज द गिवर. SBI इज द गिवर के हिसाब से आपका यहां पर आना चाहिए 2000 इन द कॉलम ऑफ SBI. ओके,
और यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो आपकी रिसीवर है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा को आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। यहाँ पे एसबीआई का कॉलम है तो यहाँ पे लिखेंगे आप बीओबी अकाउंट, डेट इज 20 एंड यहाँ पे भी डेट 20, यहाँ पे बीओबी का कॉलम है तो यहाँ पे आप लिखेंगे टू एसबीआई अकाउंट। ये जर्नल एंट्री का पोस्टिंग अपन ने किया है, बीओबी इज द रिसीवर, सो बीओबी अकाउंट डेबिट टू एसबीआई, तो ये टू एसबीआई आया और बीओबी को हमने क्या किया है, डेबिट किया है। एसबीआई हमारी गिवर है, गिवर मीन्स हमारी क्रेडिटर है, तो हमने एसबीआई के कॉलम में 2000 रुपीज क्रेडिट किया। Is this clear, dear students? Now moving further on 22. Goods of 4000 sold at 10% CD for which check is received which is deposited in BOB account. हमने goods बेचे हैं 4000 के 10% CD के ऊपर. Yes, CD is to be calculated and even shown. पर यहाँ पे तो हमने दो ही कॉलम्स बनाए हैं, SBI और BOB. इसके लिए CD हम कैलकुलेट करेंगे पर शो कर पाएंगे नहीं. Deposited in BOB. So here date 22 to sales account. BOB में कितना आएगा 3600, क्योंकि 4000 का 10% आप डिडक्ट करेंगे तो 400 आपका माइनस हो जाएगा 4000 में से और आपका आंसर आएगा 3600. So hereby it is ओवर। अभी हमें क्या करना होगा, टोटलिंग करना होगा। जो भी साइड आपको ज्यादा नजर आ रहा है वहां पे आप टोटलिंग करेंगे, लाइंस ड्रॉ करेंगे लाइक दिस वे। फाइन, अभी आपके टोटल्स आएंगे। नाउ if you will do the totaling of debit side of SBI, that is receipt side, तो 7700 आएगा। This 7700 is to be shifted on the credit side, payment side। वापस से आपको BOB का कॉलम टोटल करना है तो it will turn up to 27600। उसको भी हम कहां पर लेकर आएंगे, BOB के कॉलम में लेकर आएंगे। Now what we are supposed to do, हमें ये सारे जितने भी हमने पेमेंट्स किए हैं वो डिडक्ट करने हैं और उसके बाद का जो आपका बैलेंस आ रहा है that is 1200 रुपीज। सेम विद BOB 27000 में से आपको ये सारा डिडक्ट करना है, देन इट विल कम टू 15600। ये क्या है, हमारा बैलेंस है बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। हमारा कौन सा मंथ हम कर रहे हैं, दिस इज सितंबर। सो सितंबर हैज 30 डेज, लास्ट डेट को हमने बैलेंसिंग कर दिया। दिस कैरीड फॉरवर्ड बैलेंस will be the opening balance for the next month. We will write 2015 October 1st. क्या लिखेंगे, to balance brought forward। SBI में 1200 and BOB में 15600। I hope this question number 9 is clear to you people. Now your today's homework is question number 9, which I have taught you right now. Along with that similar type of illustration is also there, illustration number 8. Please complete this work in your accounts book. Thank you, students.